Okay, everyone. Assalamu alaikum once again. Assalamu alaikum and very good afternoon, everyone. So, doing some R&Ds in this Zoom meeting, so that it will be a easy task for us because we have shifted from Google Meet to Zoom. इसमें आई थिंक जो भी ज्वाइन करता है ना पहले तो उसका ऑडियो वीडियो ऑन होता है, उसको भी ऑप्शन को जरा हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे ही एंटर करे वैसे ही इसका ऑडियो वीडियो ऑफ। तो आई थिंक दैट सेटिंग हैज टू बी चेक नाउ। Okay, so let us start the session now. I think everything has started. The recording is also started, and recording के साथ साथ में screen मेरी shared भी है. Is my screen visible? Please let me know. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you so much. So in the last session, so till last session, what we have done, let us revise the thing. बस एक बार हम लोग वो कर रहे हैं, ज़्यादा उसमें वो डीप में नहीं जाना है. I think we have done the evolution part, that evolution of operating system, and the types of operating system, and after that the components of operating system. Okay, as you can see, so the topics are very simple. There's nothing logical, I think. So all the topics were very simple, and we have just gone through what are these things, like different types of operating system kya hai, and what are the different evolution of operating system, in which we have seen a number of operating system, like start from the serial processing, then batch processing, then multi-programming, with some reason also, and after that multi-programming, it is having two types also, that is multitasking and multi-user operating system. Then multitasking को थोड़ा सा हम लोगों ने और elaborate किया था. Then after that types of operating system, in which batch operating system, multi-programming. देखो घूम घूम के चीजें वही हैं, ठीक है, तो ज्यादा इसके अंदर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. बस जो जो चीजें यहाँ पर स्लाइड में आपको है ना, उतनी चीजें आपको पढ़ना है. अब वो जहां पर भी आ जाए, चाहे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आए, चाहे इवोल्यूशन में आए, तो आपको लिखना वही है, ठीक है. तो बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको और अलग वे से मैंने बताया हूँ, और कुछ नहीं, बिकॉज टॉपिक्स आर डिफरेंट. सो I have kept these topics separate. Okay, so so the types of operating system in this topic, we have seen different types of operating system. Multi-threading, multi-user, real-time operating system was new. I think if you have gone through this particular operating system, and after that network operating system, in which we have client server operating system and distributed operating system. Okay, so these topics were very simple, and we have gone through how these operating systems are working. ठीक है, तो simple topics थे जो हम लोग ने last time cover किए थे. Now we are going to start with the next topic. ये भी किया था हम लोगों ने, operating system component. Your operating system consists of these many components, as you can see: process management, main memory management, file management, secondary storage management, IO management, protection is required, networking is also required, and command interpreter system, in order to interpret whatever commands we are giving to the system or to the machine, that should be interpreted by the system. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को हम लोग मान सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स है. आई एम नॉट टेलिंग दैट कि भाई यही सारे कंपोनेंट्स है, बट यू कैन हैव मोर कंपोनेंट्स आल्सो. सो उसमें कोई वो नहीं है. इफ यू विल गो थ्रू एनी अदर आर्टिकल और एनी अदर स्टडी, देन हो सकता है उसमें कुछ और कंपोनेंट भी वो लोग प्रपोज करें, ठीक है, बट इतने तो रहते ही हर किसी में, ठीक है. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स है. नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर पार्ट. ओके, I think we have to complete this particular part by today itself, that is operating system structure. Okay, so first of all, what we are going to learn, or what we are going to see in the operating system structure, that will go through. First we have introduction part, what is operating system structure. Then we have different types of operating system के structure, जिसके अंदर simple है, layered है, monolithic and micro kernel. चार different types के हैं. उसमें से आपके जो most common है, मतलब मोस्ट कॉमन का जो एग्जाम में कभी कभार दो पूछता है, दैट इज लेयर्ड एंड मोनोलिथिक, या मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल, या माइक्रो कर्नल एंड लेयर्ड. तो ये तीनों का सर्कल ट्रायंगल बना के आपको पूछते हैं. सिंपल वाला बहुत कम पूछे हैं, जिसके लिए उसके बारे में ज्यादा नहीं, मतलब वो तो है ही सिंपल. ठीक है, तो सिंपल स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल. ठीक है, तो सिंपल में तो एकदम सिंपल ही रहेगा, यहाँ पर कुछ ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं रहेंगी. layered structure will be having the layering system, like starting from आपका हार्डवेयर लेवल, देन अपर उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर. तो ये पूरा लेयरिंग सिस्टम रहेगा, सो दैट द सिस्टम विल बी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो एंड टू फंक्शन ऑल्सो.
तो लेयरिंग जब आप चीजों को मॉड्यूलराइजेशन जब करते हैं, सो इट विल बी वेरी सिंपल एंड वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड टू फंक्शन द सिस्टम ऑल्सो। उसके बाद में मोनोलिथिक, मोनो मीन्स वन, सो एवरीथिंग यू विल पुट टुगेदर इनटू द सिंगल यूनिट। तो आपका पूरा का पूरा सारी फंक्शनैलिटीज आपकी एक यूनिट में आ जाएंगी, एक जगह पर आ जाएंगी। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। मैं जस्ट आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज उसके अंदर उतना डीप में के लिए पूछना ही नहीं है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा, 2 स्ट्रक्चर पूछेगा आपको 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा अगर पूछा तो। ओके, आपके पूरे इसके अंदर ये टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आपको आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मैं हम लोग अभी यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे ना। Okay, operating system structures now. Okay, so I think there's nothing to explain because everything has some kind of a structure also. Like if you will see, then for example, computer also we have a structure for that, because we know that it consists of CPU, monitor and all these. So उसके हम लोग component बोलते हैं। स्ट्रक्चर बोलेंगे तो उसका कुछ उसका शेप है, और शेप के अलावा उसके अंदर जो मॉड्यूल्स है उनका मतलब इट मॉड्यूलराइज वन, और इट इज मतलब उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, बेसिकली उसका शेप डिफाइन करेगा, उसके मॉड्यूल्स डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर कैसे है वो अलग अलग 4 टाइप्स के थ्रू हम लोगों ने इसको बताया है। ठीक है, सो बेसिकली योर ऑपरेटिंग सिस्टम इज वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। तो है तो सॉफ्टवेयर ही, लेकिन थोड़ा सा लार्ज भी है और कॉम्प्लेक्स भी सॉफ्टवेयर है, बिकॉज इट इज परफॉर्मिंग सो मेनी टास्क एज यू हैव ऑलरेडी सीन के ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के टॉपिक में हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस यू कैन सी, प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मतलब ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, मेमोरी को मैनेज करेगा, फाइल को मैनेज करेगा, फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को मेंटेन करेगा, देन आपके जो भी आईओ डिवाइसेस है उनको मेंटेन करेगा, then it also works for the protection and security. Then user interface, how the user is going to interact with the system, how the user is going to interact with your hard disk, how the user is going to interact with the other components, तो वो सारे फंक्शन आपके यूजर इंटरफेस में आएंगे। then booting computer, it's also one of the main function, and perform basic computer tasks, so it is performing so many tasks as you can see। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इन सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इसका स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको एक एक आपको उसके लिए एक वे रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर वी कैन से, and which is supporting many functions, as we have already seen, so many functions have been provided। It should be collection of such small modules with carefully defined, we must have clearly defined inputs, we must have clearly defined outputs also। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो क्या होना चाहिए, आउटपुट मुझे क्या दिखाना चाहिए, ऑल दी रिक्वायर्ड ऑप्शन रिलेटेड टू दी माई, इट शुड बी डिस्प्ले। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज क्लियरली डिफाइंड। अगर मैं यहाँ म्यूट के बटन पर क्लिक करने पर अगर ये कुछ और ही ऑप्शन ओपन हो, कुछ आई थिंक वीडियो के रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग के रिगार्डिंग अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर आ जाए, तो इज इट फिजिबल और इज इट गुड डिजाइन? नो, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर को अगर हम लोगों ने सही से डिजाइन नहीं किया, वी हैव अ टॉपिक लाइक HMI इन योर 8th सेमेस्टर। हो सकता है आप लोग के आए तक वो सब्जेक्ट रहे या ना रहे, बिकॉज वो आपके लास्ट ईयर मतलब प्रीवियस बैच का है। तो उसके अंदर हर एक चीज आपकी मतलब के यूआई पर है, यूआई पर यूजर इंटरफेस भी है, यूजर इंटरफेस के अंदर बहुत फोकस किया है। तो किसी भी चीज को आप यूज करेंगे तो हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट, ठीक है, सो दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो वो तो चलो खैर आगे की बात है। यहाँ पर हमारे पास में क्या होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड आउटपुट्स होना चाहिए, क्या क्लिक करने पर क्या आना चाहिए, कौन से बटन को प्रेस करें तो क्या होना चाहिए। वी हैव क्लियरली डिफाइंड इनपुट दैट इफ यू विल कंट्रोल सी, देन द थिंग विच आर सेलेक्टेड विल बी कॉपीड इनटू दी, कहाँ कॉपी होता है वो, वहां पर कॉपी होता है, नाम भी दिमाग से निकल गया।
तो आपका कॉपी, वो आपका कंटेंट कॉपी हुआ, नाउ यू कैन पेस्ट इट, ठीक है। तो आप पेस्ट करेंगे तो वो फोल्डर या वो टेक्स्ट या आपकी फाइल, इट विल बी पेस्ट इनटू द रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन, ठीक है। सो ये हमारा क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स है, क्लियरली डिफाइंड आउटपुट्स है, एंड द फंक्शन, वॉट एवर फंक्शन वी आर परफॉर्मिंग, दैट इज कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, वो भी आपका सिंपली डिफाइंड है, वो भी आपका इजीली परफॉर्म हो रहा है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर हो या किसी आपके किसी भी मशीन का स्ट्रक्चर हो, तो दैट शुड बी क्लियरली डिफाइंड, ऑल द इनपुट्स एंड ऑल द आउटपुट्स एंड ऑल द फंक्शन व्हिच आर इन दैट पर्टिकुलर मशीन, दैट मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। तो ये तो सिंपल है। अगर सही से काम नहीं करे, कंट्रोल सी पर अगर ये टेक्स्ट कॉपी ना करे, मैंने यहाँ से किया, मैंने यहाँ से इतना टेक्स्ट कॉपी किया, और टेक्स्ट कॉपी करके जब मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया, तो क्या हो गया, सारा का सारा ये कॉपी हो गया, सारा टेक्स्ट कॉपी हो गया, ठीक है। तो मैं इनपुट जो दे रहा हूँ, उसके बाद में अगर मैं कहीं इसको पेस्ट करता हूँ, तो पेस्ट करने के बाद में सारा का सारा पेस्ट भी होना चाहिए, तो मुझे आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है। सो हेयर ऑल द थिंग्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो दैट आई कैन से दैट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पावर पॉइंट इज वर्किंग फाइन, मतलब इसका स्ट्रक्चर सही है। सिंपली हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ structures, as you can see, the different types of structures are listed over here, like simple structure, layered structure, monolithic and microkernel। चार आप ध्यान में रखो, ध्यान में रखो, ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो वो सिंपल है, मैंने इसमें मतलब अपनी गैल्विन वगैरह से दूसरी बुक से मैंने इसका जो क्लियर डेटा है, जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो काम का डेटा है, दैट आई हैव टेकन आउट फ्रॉम दोस बुक्स एंड आई हैव पेस्टेड ओवर हियर, ठीक है। तो अगर आप खाली एक बार इन स्लाइडों को रीड भी कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे ना, तो आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने इतना क्लियरली उसमें से पॉइंट्स निकाल के अपनी स्लाइड्स में पेश किया हूँ, ठीक है। सो दीज आर नॉट जस्ट अ स्लाइड, दे आर क्विक रेफरेंस नोट्स फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। तो आपके लिए एकदम क्विक रेफरेंस नोट्स है, आप कभी भी ओपन करके इसमें से रीड आउट। Student used to read all my slides, okay, study this particular slide in for their UT1, UT2 and their final examination for Viva also। तो सबके लिए यही रिफर करते हैं। हालांकि मैं ज्यादा प्रेजेंटेशन पे मतलब आपका प्रेजेंटेशन पे ज्यादा मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, और ज्यादा प्रेजेंटेशन से नहीं तो करता हूँ, लेकिन बट स्टिल कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ कंटेंट है जो कि रिक्वायर्ड है कि उनको इसी के थ्रू किया जाए, इसके लिए मैं अभी फिलहाल इस पे चल रहा हूँ। When we'll switch to the next chapter, that is process scheduling, so we'll switch to any other book, ठीक है, because we required some handwork, ठीक है, कुछ वर्कआउट करना, कुछ सॉल्व करना, कुछ डायग्राम्स वगैरह, वो सब चीजें हम लोग को रिक्वायर्ड है। सो एट दैट टाइम विल स्विच आवर मोड ऑफ टीचिंग, ठीक है। So now come to the first one, that is simple structure, okay। now the simple structure को मैंने यहाँ पे दो स्लाइड में कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। दो स्लाइड के अंदर एक में डायग्राम है और एक के अंदर स्ट्रक्चर। दिस इज स्मॉल, सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम, where simple structure is small, simple and limited। इसमें तीन स्टेटमेंट अलग अलग है, ठीक है। इट इज अ स्मॉल सिस्टम, स्मॉल स्ट्रक्चर। अब स्मॉल स्ट्रक्चर है तो इसके मॉड्यूल्स भी कम रहेंगे, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, एंड लिमिटेड सिस्टम ऑल्सो, बिकॉज ये आपका बहुत कम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बहुत अर्लियर वाले में, उसके बाद में इसको यूज ही नहीं करें, बिकॉज नाउ वी आर हैविंग, we came with the new operating system structure, like we have monolithic, microkernel, जो कि आजकल के operating system में use होते हैं, ठीक है। now we are having actually hybrid structure, so these hybrid structures are very powerful and very useful, which are used in nowadays, okay, जो हमारे आजकल के चल रहे हैं उसमें use होते हैं। तो इसके लिए पहले वाला यूज नहीं होता है, इसके लिए बोला ये लिमिटेड भी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो जैसे कि होता है मॉड्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट अ कंप्यूटर, सो यू वी कैन इजीली से दैट कि इसमें एक सीपीयू है, इसमें मॉनिटर है, ये रैम है, ये है, ये है। सो वी हैव क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ अ कंप्यूटर, बट इन दिस आर्किटेक्चर यू कैन से यहाँ पर सारी चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं है। दूसरी चीज, we have no CPU execution mode, no we have CPU and kernel mode। तो ये CPU and kernel mode आप लोग समझ में आएगा जब आप लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर CPU execution mode नहीं है, ठीक है। मतलब आपका जो प्रोसेस आएंगे, आपके जो टास्क आएंगे, सो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय, ये कौन एग्जीक्यूट करता है बेसिकली, ये आपका CPU एग्जीक्यूट करता है, बिकॉज CPU उन टास्क को लेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर वो मोड नहीं होता, बेसिकली पहले वो मोड नहीं था, बाद में वो मोड को लाया गया।
सो कॉज एप्लीकेशन एरर्स कैन कॉज सिस्टम क्रैश। तो अब जाहिर बात है जब इतने सारी इसके अंदर लिमिटेशंस है तो सिस्टम क्रैश तो बार बार भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल आपका एमएस डॉस मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव यूज दिस पर्टिकुलर सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, which was not the GUI version, it was simply the कमांड लाइन वाला वर्जन। ठीक है, इन विच यू आर हैविंग अराउंड 40-50 कमांड, बहुत सारी कमांड्स के अंदर है, आप उसको कमांड को यूज करके सारा काम आपको करना होता था। ठीक है, सो दैट सिस्टम वाज नोन एज MS DOS। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय SSC in 2002, okay, so I completed this course। ठीक है, I took one course in a computer class that is MS DOS। तो उसके अंदर मुझे इंटरनल कमांड सिखाई गई, एक्सटर्नल कमांड सिखाई गई। वही जो कमांड हम लोग यूज करते हैं, DIR यूज फॉर लिस्टिंग आउट ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। CD से क्या करते हैं, चेंज डायरेक्टरी करते हैं। कॉपी कॉन न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, CP कॉपी करने के लिए, MV मूव करने के लिए, DEL किसी फाइल को डिलीट करने के लिए, RMDIR डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। सो वी हैव ऑल दिस बेसिक कमांड व्हिच आर यूज्ड इन द MS DOS। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम था आपके सिंपल स्ट्रक्चर में। If people are understanding or not, please let me know। मैं खाली बस बोलता जा रहा हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या नहीं? बिकॉज Yes, समझ sir. गए। ओके, आई थिंक द थिंग्स आर क्वाइट सिंपल। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। ये पूरे चैप्टर में हमारे कहीं पर भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नजर नहीं आएगी, आपको टॉपिक्स एकदम सिंपल लगेंगे। आई होप सो। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ चीज समझ में नहीं आती है, तो मुझे बताओ। ठीक है, देन वी कैन रिपीट द थिंग्स आल्सो। ओके, ठीक है। यस सर। सर पेपर में भी अगर ऐसे ही पॉइंट वाइज लिखेंगे तो चलेगा, 5 मार्क्स के लिए भी? पेपर में देखो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, बट इतना शॉर्ट में नहीं लिखना है जितना शॉर्ट में मैंने लिखा हूँ। कभी भी पेपर में अगर आप पॉइंट वाइज लिखेंगे ना, सो दिस इज वेरी वेरी गुड वे ऑफ राइटिंग आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। बिकॉज अगर पॉइंट वाइज रहेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खुला खुला रहेगा और सारे पॉइंट क्लियरली मेंशन रहेंगे। ठीक है, बहुत से लोगों तो मैंने देखा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं उसको भी उन लोग मार्क कर लेते हैं, नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग उसको अलग कलर की पेन से भी लिखते हैं। तो उतना तो हमको नहीं करना है, लेकिन कम से कम अगर लिख रहे हैं पॉइंट वाइज तो कंप्लीट स्टेटमेंट में लिखना है। अब यहाँ पे लिया खाली स्मॉल सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम। तो दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड ना कि यू आर जस्ट राइटिंग स्मॉल सिंपल एंड लिमिटेड, ये एक्सपेक्ट नहीं है। आपको उसका एक सेंटेंस फॉर्म करके प्रॉपर पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो और क्या हम लोग पढ़े थे अब इसके बारे में? हाँ, इन MS DOS एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द डिवाइस ड्राइवर। बिकॉज हमारे पास में देखो जो चीजें थी हमारे पास MS DOS में, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सारे काम जो होते थे हमारे, वो डायरेक्टली हमारा डिवाइस ड्राइवर, मतलब हमारा डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्शन था। मतलब हमारे हार्डवेयर को ड्राइव करने वाले जो डिवाइस ड्राइवर है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे हमारे कमांड के थ्रू। ठीक है, यानी हमारे पास में कोई एप्लीकेशन नहीं थी, बोल होती है हमारे पास में कोई एप्लीकेशन उस टाइम पे। हमारे पास में ना ही कोई MS वर्ड था, ठीक है, जिससे हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सके। ना ही हमारे पास में उस वक्त में कोई टूल था जिसकी मदद से हम PDF क्रिएट कर सके। ना ही कोई टूल था जिसकी मदद से हम लोग वीडियो को प्ले कर सके। ना ही कोई टूल था जिसकी मदद से हम लोग अपने ईमेल सेंड कर सके। ईमेल भी सेंड करना है तो उसके लिए भी कमांड लिखो, और जिसको सेंड करना है उसका ईमेल ID लिखो, और उसके आगे से फिर अपना कंटेंट लिखना शुरू करो, या उसका पहले सब्जेक्ट लिख दो फिर कंटेंट लिखना शुरू करो। So it was having a simple format for that। So if you want to write a mail also, then you can make use of the commands also। ठीक है, तो कमांड के थ्रू आप अपना अपना सारा काम कर सकते हो। ठीक है, तो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम वगैरह बीच में इंटरेक्शन कुछ नहीं था, इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन MS DOS एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली, एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब आपके जो कमांड्स थे यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा है लिखा हुआ, लेकिन आपके जो कमांड्स थे जिससे आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आपके सिस्टम को, आपके कंप्यूटर को, आप जिन कमांड्स के थ्रू सिस्टम को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो किससे इंटरेक्ट करती थी? डायरेक्टली डिवाइस ड्राइवर से। तो वी वर नॉट हैविंग एनी एप्लीकेशन, एनी प्रोग्राम लाइक MS वर्ड,
PDF रीडर, VLC प्लेयर, ऐसा कोई है ना हमारे पास में कोई माई कंप्यूटर था जिसको ओपन करके हम सारी फाइल्स एंड फोल्डर अपने ड्राइव वगैरह देख पाए, ऐसा कुछ नहीं था, सिंपल ब्लैंक विंडो। ठीक है, आई थिंक आप लोग में से जिसने यूज किया है तो उन लोग को पता रहेगा कि इट वाज अ सिंपली ब्लैंक विंडो, सॉरी ब्लैक विंडो, जिसके अंदर हम लोग को वी हैव टू टाइप सो मेनी कमांड्स एंड वी हैव टू परफॉर्म आवर टास्क। ठीक है, सो इफ यूजर मेक्स एनी चेंजेस देन इट मे रिजल्ट प्रॉब्लम। तो ये मैंने किस केस में लिखा हूँ, ठीक है, ओके, क्लास वाले को वो करो, फोकस करो। मेमोरी साइज, मैंने वो स्टेटमेंट कहीं ना कहीं किसी के अटैचमेंट में लिखा हूँ, लेकिन वो अब आगे पीछे याद नहीं आ रहा है। सो मेमोरी साइज इज आल्सो लिमिटेड आफ्टर यूज, मेमोरी मस्ट मेड फ्री फॉर अदर यूजर्स आल्सो। जाहिर बात है, पहले का जमाना, उसके अंदर आपके पास में मेमोरी कम। ठीक है, अब मेमोरी कम तो उसके अंदर ऑब्वियसली आप जैसे हम लोग करते हैं ना, जब भी कोई वेरिएबल्स हमारे जो चीजें हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स एंड अदर, हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे वेरिएबल यूज कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग प्रोग्राम बंद करते हैं तो सारे के सारे फ्री हो जाते हैं, बट यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट का कोई मॉड्यूल ही नहीं है हमारे पास में। जब मेमोरी मैनेजमेंट का कोई मॉड्यूल ही नहीं है तो ये मेमोरी कैसे मैनेज हो रही है? तो उसमें करना ये होता था कि आप जो भी आपने टास्क परफॉर्म किए, वो टास्क के बाद में आपको मेमोरी फ्री करना होता, ताकि दूसरे यूजर, और फ्री कैसे करेंगे आप, अपने सिंपल अपनी जो ब्लैक विंडो है, आपका जो टर्मिनल है उसको क्लोज कर दो, तो सारी की सारी मेमोरी वापस से फ्री होगी। ठीक है ना, अदर यूजर कैन मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो सिंपल यूजर वाज वेरी सिंपल एंड लिमिटेड सिस्टम। सिंपल तो था लेकिन बहुत ही लिमिटेड भी था, और लिमिटेड होने की वजह से जो फंक्शनैलिटीज हमारे पास में आज है वो उस टाइम पे तो नहीं थी ऑब्वियसली। तो इट वाज अ सिंपल स्ट्रक्चर। तो ये एक हमारा एक टाइप हो गया जिसके अंदर हमारे पास में कोई ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ डायग्राम विच आई हैव गॉट फ्रॉम वन ऑफ द बुक। ठीक है, गैल्विन से ही मिला शायद मुझे। So as you can see, these are the lowest level is the BIOS या आपका डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, जो हम लोग ड्राइवर्स वगैरह पहले इंस्टॉल करते थे, आजकल तो सारे डिवाइस हमारे प्लग इन प्ले हो गए हैं, तो इसके लिए हम लोग को कोई ड्राइवर्स वगैरह भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर ड्राइवर्स, पहले हम लोग को ड्राइवर्स हर एक चीज के इंस्टॉल करना होते थे। ठीक है, सो वो आपके बायोस का लेवल है, उसके ऊपर आपके MS DOS के डिवाइस ड्राइवर है, देन ऊपर रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम। अगर उसके लिए कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आपका VI एडिटर है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो एडिटर चलता होगा तो वो एडिटर या वो जो टूल चलते होंगे, तो वो टूल उस टाइम पे यूज होते होंगे। जैसे एग्जांपल आपको बोलता हूँ मैं कि अभी पार्टीशन करने के लिए, अगर आपको अपने सिस्टम का पार्टीशन करना है, अपने हार्ड डिस्क का पार्टीशन करना है, तो यू हैव GUI बेस्ड टूल आल्सो। ठीक है, या फिर आपके पास में कोई टर्मिनल बेस्ड टूल है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी हार्ड डिस्क को पार्टीशन कर सकते हैं। बट उस टाइम पे कोई और टूल हुए रहेगी। ठीक है, वही सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम, वही सारे प्रोग्राम्स आपके ये लेयर पे रहेंगे, यानी कि रेसिडेंट सिस्टम प्रोग्राम पे। और लास्ट में आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम, उसमें टॉप पे जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके टर्मिनल वो यहाँ पर रहेंगे। आपके टर्मिनल के अलावा फिर और जो जो टूल मतलब आपने सामने यूज किए, तो वो टूल्स आपके यहाँ पर रहेंगे। तो स्ट्रक्चर सिंपल था, मतलब जरूरी नहीं कि सारी चीज यहाँ पर हो ही हो। अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम तो रहेगा ऑब्वियसली, एक टर्मिनल रहेगा, तो वो टर्मिनल आपका टॉप पे रहेगा। इट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द बायोस आल्सो। ठीक है, इट कैन कम्युनिकेट विद योर सिस्टम प्रोग्राम आल्सो, योर सिस्टम प्रोग्राम कैन कम्युनिकेट विद योर डिवाइस ड्राइवर आल्सो। मतलब इन शॉर्ट कि आपको 4 ब्लॉक्स याद में रखना है। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा दिमाग में मत लगाओ, 4 ब्लॉक्स आपको याद में रखना है, उनके नाम। सबसे नीचे तो बायोस है, उसके ऊपर MS DOS के आपके डिवाइस ड्राइवर है, और आपका फिर सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखो सिंपल सिंपल वर्ड से याद में आपको रखने लगा रहा हूँ, वही वही याद रखो। पहले तो डिवाइस ड्राइवर, रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर, बायोस डिवाइस ड्राइवर, MS DOS डिवाइस ड्राइवर, 2 हो गए। उसके ऊपर जाओ सिस्टम प्रोग्राम, ऊपर जाओ एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो यू कैन कनेक्ट द अपर टू द डिवाइस ड्राइवर, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड सिस्टम प्रोग्राम को आपको डिवाइस ड्राइवर से कनेक्ट करना है, बिकॉज दे वर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डिवाइस ड्राइवर ऑफ बायोस। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, आपको डायग्राम याद में रख के उसके कुछ पॉइंट लिखना होते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास में लेयर्ड स्ट्रक्चर है। सो लेयर्ड स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उसके बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या है। ठीक है, तो डायग्राम इज आल्सो वेरी सिंपल, एज यू कैन सी in this diagram you will find we have different layers. Okay, we have different layers, like the layers are starting from 0, computer hardware,
हमारा सबसे बेस लेयर है। और आफ्टर दैट वी हैव लेयर 1, वी हैव लेयर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी है, ये n-1 and layer n. Okay, so depending on the operating system we may have different structure. ठीक है, तो लेयर हमारे पास में उसके हिसाब से अलग अलग लेयर्स हो सकती है। तो दोस्तों हमारा ये लेयर 0, देन लेयर 1 एंड आफ्टर दैट उसके बाद में जितनी भी लेयर है डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, देन लेयर n-1 एंड देन लेयर n। ठीक है, तो जो लास्ट वाली लेयर है वो आपका यूजर इंटरफेस, जहां से यूजर आपके सिस्टम को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ तो प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो दैट इज माय यूजर इंटरफेस लेयर। ओके, मतलब ये मेरा यूजर इंटरफेस बेसिकली मेरा माउस है, और जहां जहां मैं यूज कर रहा हूँ तो वो है। एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका माइक्रोसॉफ्ट का, ये आपका पावर पॉइंट है, ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, उस वो जिससे कनेक्टेड है, तो उसके अंदर पीछे लेयर, उसके पीछे लेयर, और लेयर होते होते लास्ट में, अब मैं लास्ट में जो है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर लेयर। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर अब बेसिकली आपका जो डिस्प्ले डिवाइस आ गया, तो डिस्प्ले डिवाइस की मदद से ही आई कैन सी दिस पर्टिकुलर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आप लोग कोई भी चीज कंसिडर करो, यहाँ पर आपको हार्डवेयर से मतलब हार्डवेयर आपको यहाँ पर कनेक्टेड दिखेगा। हार्डवेयर है जो कि लेयर 0 पे है, देन लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, whatever number of layers depending on the operating system we have, and after that लास्ट में एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड यूजर इंटरफेस लेयर। तो इस तरीके से इसकी लेयर्स हम लोग बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज लेयर्ड अप्रोच। इसको लेयर्ड अप्रोच भी बोलते हैं, लेयर्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो वी हैव सेकंड काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर दैट व्हिच इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इन्होंने भाई साहब ने क्या बोले हैं। इसमें भी सिंपल है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है। विथ प्रॉपर हार्डवेयर सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ पीसेस। ओके, नाउ देखो पहले चीजें ऐसे नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अब सोचा गया कि नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू नंबर ऑफ वी कैन से पीसेस, एंड दैट आर स्मॉलर एंड मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज जब चीजों को आप लोग जब डिवाइड करोगे सो इट विल वर्क मोर एफिशिएंट। ठीक है, अच्छे से एफिशिएंटली वो चीजें काम करेंगी। तो विद प्रॉपर हार्डवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रोकन इनटू number of pieces. Okay, then system can be made modular in many ways, as I told you that के now the another things are coming like modularization का जमाना आ रहा है। ठीक है, आई थिंक मैंने पहले आप लोग को एग्जांपल दिया था मॉड्यूलराइजेशन में, जैसे कि आपके आगे चल के फोन आपके ऐसे आएंगे, आई थिंक आप लोग को बताया था कि नहीं बताया, आगे चल के फोन ऐसे आएंगे कि सब मॉड्यूलराइज फोन। बीच में मैंने कॉन्सेप्ट देखा था वीडियो पर, तो उसमें मॉड्यूलराइज फोन आएंगे, लाइक आपका प्रोसेसर का मॉड्यूल अलग, आपका कैमरे का मॉड्यूल अलग, आपका क्या मतलब आपका आपका जो है तो डिस्प्ले का मॉड्यूल अलग। ठीक है, सो फॉर ईच एंड एवरी टास्क, ठीक है, फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन आपके एक अलग मॉड्यूल रहेगा, उसका एक मॉड्यूल रहेगा। फॉर एग्जांपल योर कैमरा इज नॉट वर्किंग। ठीक है, तो कैमरा अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली मोबाइल ओपन करके वो मॉड्यूल निकालना है और दूसरा नया मॉड्यूल आपको उसमें इंसर्ट करना है। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूलराइजेशन। ठीक है, तो मॉड्यूलराइजेशन कॉन्सेप्ट की वजह से चीजें बहुत आसान हो जाती है, सिंपल हो जाती है, एंड even a common man can do that thing whatever that the expert person is doing। तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। तो system can be made modular in many ways, like one is the layered approach। Okay, we have already shown you that diagram in which we are having different layers। Okay, अलग अलग layer पे अलग अलग काम हो रहे हैं। So one is layered approach in which OS is broken into number of layer, as we have already seen कि the OS ऑपरेटिंग सिस्टम वाज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। उसमें लेयर 0 पे हार्डवेयर को रखा हमने, लेयर 1 पे फिर कुछ और आपके डिवाइस ड्राइवर वगैरह ऐसे कुछ रहेंगे, फिर ऐसे करते करते लास्ट में एप्लीकेशन प्रोग्राम, और एप्लीकेशन प्रोग्राम के ऊपर ये हमारा यूजर इंटरफेस, जहां से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। इंटरेक्ट कर रहा हूँ मतलब ये मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, मैंने ड्रॉ पे क्लिक किया, मैंने होम पे क्लिक किया, तो बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस पॉइंटर, बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस माउस। ठीक है, मैं इन सब की मदद से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम लेयर n-1 पर, देन यूजर इंटरफेस लेयर n पर। वन इज ये हो गया, ईच लेयर इज प्रॉपरली डिफाइंड, ईच लेयर इज प्रॉपरली डिफाइंड। एज यू कैन सी यहाँ पर हम लोग ने प्रॉपरली डिफाइन किया, लेयर 0 पे कौन रहेगा, लेयर 1 पे हो सकता है। यहाँ पर कुछ डिफाइन इसके लिए नहीं है कि आपका यहाँ पर ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर मतलब डिपेंड रहेगा।
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके हिसाब से लेयर 1 रहेंगी, लेयर 2 रहेंगी। हो सकता है किसी में लेयर 1 लेयर 2 रहे, हो सकता है किसी में लेयर 1 ही रहे, हो सकता है किसी में लेयर 1 2 3 रहे। तो इट इज डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो। बॉटम लेयर दैट इज लेयर 0 इज हार्डवेयर, ठीक है, अब सिंपल है। हाईएस्ट लेयर दैट इज लेयर एन इज यूजर इंटरफेस। देखो दोनों चीज आपको डिफाइन करती है कि भी सबसे जो लोअर लेयर है जो कि आपका बॉटम लेयर है दैट इज लेयर 0, ये आपका हार्डवेयर है, ठीक है, और जो टॉप पे लेयर है वो आपका यूजर इंटरफेस है, ठीक है। ये दो चीजें डिफाइंड होगी। अब जो बीच का है तो बीच को हम लोग समझ लेंगे। फंक्शन ऑफ ईच लेयर इज ऑल्सो फिक्स। पहले लेयर को क्या करना है, दूसरे लेयर को क्या करना है, लेयर 0 को क्या काम करना है, लेयर n को काम क्या करना है, सो दैट इज ऑल फिक्स। ईच लेयर यूजेस द इंटरफेस अबव एंड बिलो इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपका जो ये लेयर 1 है जो कि हो सकता है डिवाइस ड्राइवर हो इन एनी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम केस, तो लेयर 1 विल मेक यूज ऑफ द लेयर 0 ऑल्सो एंड लेयर 2 ऑल्सो, ओके। तो लेयर 1 हो सकता है लेयर 0 को कुछ इनपुट दे, और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो लेयर 2 है, लेयर 2 वो लेयर 1 को कुछ इनपुट दे, तो हो सकता है ऐसा कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर भी जो भी लेयर है वो अपने ऊपर और नीचे वाले से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। जैसे होता है ना, हम अपनी बेंच में बैठे बट वी कैन कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज बिहाइंड मी एंड हु इज ओके इन फ्रंट ऑफ मी, ओके, या जो राइट में है जो लेफ्ट में है, मैं सबसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। इन आर केस excuse me. Okay, sorry. So each and every layer is communicating with the layer which is behind, which is above and which is below, ठीक है। So basically जैसे हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं, हम अपने आगे पीछे दाएं बाएं सबसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन द सेम वे वी आर हैविंग दिस ऑप्शन इन द लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ज्यादा सोचने का दिमाग नहीं है, बस राउंड 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 बनाने का। अंदर वाले राउंड के अंदर आपका हार्डवेयर लेयर रहेगा, दैट इज हार्डवेयर लेयर, दैट इज लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लास्ट में लेयर एन जो कि यूजर इंटरफेस। आपने इतना भी अगर बता दिए ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसका और एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है, बस इतना ही काफी है। Advantages: design and implementation makes simple and it makes debugging much easier. So we have 2-3 advantages over here. So design and implementation makes simple. इसके थ्रू, ये स्ट्रक्चर के थ्रू अगर कोई आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो उसका इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके लिए प्रोटोटाइप है, ये आपके लिए क्या है, एक मॉडल है, ओके। तो आपको कौन सा मॉडल पसंद है, किसकी फंक्शनैलिटीज पसंद है, उसके हिसाब से उनकी फंक्शनैलिटीज को आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हो, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है सिंपल, लेयर्ड, मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल। राइट नाउ मोनोलिथिक माइक्रो कर्नल के बारे में पता नहीं आपको, लेकिन चलो इमेजिन कर लो पता है। तो चारों आपके पास में मॉडल्स है, ठीक है। लाइक अगर आप लोगों ने गेम खेला होगा NFS, दैट इज नीड फॉर स्पीड, तो आपको स्टार्टिंग में एक रेस करवाएंगे और रेस करवाने के बाद में आपको पूछते हैं, फिर आपको 3 अलग अलग टाइप की कार्स आपको चूज करने बोलेंगे कि तीनों में से कोई एक कार चूज करो, और तीनों का जो जेनर जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तीनों अलग अलग मॉडल्स की होती हैं। एक कुछ थोड़ी सी फंकी टाइप की होती है, एक रेसिंग कार होती है, और एक अलग ऐसा, मतलब मुझे इसका नाम भी याद नहीं, बट अलग अलग टाइप की कार होती है। फिर आप जिस मॉडल को सेलेक्ट करेंगे तो उसी उसी फिर मॉडल में फिर आप अपग्रेड वगैरह कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो लाइक व्हेन वी आर चूजिंग, when we are trying to construct an operating system, then we have all these options in front of us, like we have simple, we have layered approach, we have monolithic, we have microkernel.
and we have all the advantages of all the structure in front of us कि भाई इसके ये advantages है, इसके ये advantages है, इसके ये advantages, इसके ये disadvantage है, इसके ये disadvantage. So we have all this thing in front of us and we have to choose, we have to decide that which operating system structure we need, जिसको as a model हम लोग लेके use करके अपना operating system बनाए. ठीक है, तो डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन मेक सिंपल इन द लेयर्ड स्ट्रक्चर, बिकॉज इफ you'll compare it with the simple structure, तो सिंपल में तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, लिमिटेड है हर एक चीज. यहाँ पर चीजों को थोड़ा सा मॉड्यूलराइज किया गया है, तो ऑब्वियसली इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और डिजाइन है दैट विल बी सिंपल एंड मेक्स डिबगिंग मच इजियर. ठीक है, कोई भी किसी भी चीज को ट्रैक करना, किसी भी चीज को डिबग करने में तो आपको सिंपल रहेगा. जरूरी नहीं कि अगर डिबगिंग नाम लिया जाए तो डिबगिंग मतलब आपके प्रोग्राम का ही डिबगिंग. ठीक है, whenever if anything if your system is performing some function and if it encounters any error then उसको भी हम लोग डिबग करना बोलते हैं. ठीक है, तो ये है आपका लेयर्ड अप्रोच, लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक डायग्राम. देखो दोनों के डायग्राम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जहां तक आपके ये टॉपिक का सवाल है तो आपको दोनों के डायग्राम्स अच्छे से याद रखना होंगे. अगर डायग्राम याद है तो आप लोग उसका आंसर भी आराम से लिख लेंगे और वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं. तो आप लोग एक बार गो थ्रू करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. ठीक है, हाँ. अब पीछे मैंने एक दूसरा टॉपिक थोड़ा इंसर्ट किया हूँ, दैट इज कर्नल. ओके, बिकॉज आगे चल के जो तो हमारे स्ट्रक्चर है जो कि है मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल, तो मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल जो है ना वो हमारे कर्नल के टॉपिक के अंडर में आते हैं. है वो दोनों स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर, बट ये कर्नल के टॉपिक में भी आते हैं. लाइक इफ यू कैन सी then the types of kernels are monolithic kernel, micro kernel, hybrid kernel, nano kernel, exo kernel. ये सारे डिफरेंट टाइप्स है, बट हमारे यहाँ पर हमारे सिलेबस में खाली मोनोलिथिक कर्नल एंड माइक्रो कर्नल है, दो है बाकी. ठीक है, पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सामने रखा हूँ. ओके, सो बेसिकली व्हाट इज कर्नल. ठीक है, देखो मैंने सिंपल यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लिखा हूँ उसको आप लोग एक ध्यान से देखो. ठीक है, उतना आप लोग कर लेंगे ना आपके लिए काफी है मेरे हिसाब से. अब कर्नल क्या है? कर्नल इज ओनियन. मैंने खाली लिखा ओनियन, ओनियन नहीं है. द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द ओनियन इज कॉल्ड एज कर्नल. वो ऑब्वियसली आपका जो ओनियन होता है, ओनियन का जो अंदर का जो पार्ट होता है एकदम बस, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल. जैसे सिमिलरली इनरमोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज कर्नल. तो इन द सेम वे जैसे आपके ओनियन के अंदर जो इनरमोस्ट पार्ट, जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कर्नल बोलते हैं, वैसे ही तो वो आपके कंप्यूटर के अंदर जितना ही आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितना क्रूशियल पार्ट है, वो क्रूशियल पार्ट और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कर्नल. ठीक है, तो कर्नल इज मतलब बेसिकली देखा जाए तो कर्नल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की पूरी जान है. अगर कर्नल नहीं है तो फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं. ठीक है, तो मैंने खाली एग्जांपल देने के लिए, बिकॉज ये एग्जांपल आपकी गैलरी में भी है. ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आपको मैंने खाली उसका वो लिया हूँ कि ओनियन का इनर मोस्ट पार्ट जो है वो कर्नल कहलाता है, मतलब वो इनिशियल एकदम क्रूशियल पार्ट है. वैसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो क्रूशियल पार्ट है वो आपका कर्नल है. ठीक है, उसके ऊपर कर्नल के ऊपर जो जो कवरिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं शेल. ठीक है, तो दो चीजें हैं, दो वर्ड है, दो कीवर्ड है जो कि कभी कभार वाइवा में पूछते हैं, व्हाट इज कर्नल एंड व्हाट इज शेल. ठीक है, तो कर्नल बेसिकली इज द इनर मोस्ट एंड क्रूशियल पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. It is called as kernel. ठीक है, and the thing which covers the kernel is called as shell. ठीक है, the part which covers the kernel is called as shell. तो शेल आपके कर्नल के ऊपर होता है. ठीक है, कर्नल इज कोर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल इज कोर कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज कोर कंपोनेंट. कोर उस चीज को बोलते हैं जहां पर मतलब उससे काम नहीं हमारा चल सकता. ऐसे पार्ट्स को, ऐसे चीजों को, ऐसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर कंपोनेंट्स. यूजिंग आईपीसी एंड सिस्टम कॉल. अब यहाँ पे एक नई चीज आई, सिस्टम कॉल. सिस्टम कॉल के बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो सिस्टम कॉल भी बहुत अच्छी चीज है, आपको खाली याद रखने की चीज है यहाँ पर. सी these are the system call. तो सिस्टम कॉल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. आई नो 249 हो गए, बस हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं, इतना पार्ट कंप्लीट कर लेता हूँ. When operating system is loaded into the memory, kernel loads first and remain in memory until computer is shut down. तो मैंने यहाँ पर चीजें ऐसी निकाल के रखा हूँ कि इनको पढ़ने के बाद में आपको कोई डाउट इसके अंदर नहीं. आई होप
तो व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनसाइड द मेमोरी, सो कर्नल को आपके मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, और जब तक रहता है जब तक के आपका सिस्टम शट डाउन नहीं होता तब तक के वो रहता है, और जहां सिस्टम को शट डाउन किए तो वहां से उसको निकाल के फिर वापस से भेज डालते आपके डिवाइस में, आपके हार्ड डिस्क में भेज डालते, ठीक है। तो कर्नल इज द सॉफ्टवेयर कोड दैट रिसाइड्स इन द सेंट्रल कोर पार्ट ऑफ द ओएस। तो कुछ स्टेटमेंट हो सकता है रिपीट भी हो। It has complete control over the system. Your kernel has complete control over the system. ठीक है, बिकॉज ये मात्र एक आपका ऐसा कंपोनेंट है जो कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब उसके अंदर हमारे पास में अलग अलग कंपोनेंट्स है जो जिनकी मदद से हम लोग काम करते हैं, वो हमारे कंपोनेंट्स जो कि हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो कर्नल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन या छोटे से कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे पास थे, मैंने आप लोगों के सामने पुट किया। Communication between hardware and software, your kernel is responsible for all these things which you can see, that is process management for application execution, then memory management, then device management via device driver, then system call control. Kernel provides and manages computer resources, allowing other programs to use these resources while in the execution. तो ये सारे काम हमारे कर्नल के हैं। देखो एक बात और मैं आपको बोलूंगा कि ये चीजें आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएंगी जब तक कि आप लोग थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे कहाँ नहीं बढ़ेंगे, अपने सेकंड चैप्टर में नहीं जाएंगे। इसके लिए भी जो हो रहा है ना, तो उसके अंदर बस खाली दिमाग में रखते जाओ कि हाँ कर्नल इंपॉर्टेंट है, कर्नल कोर पार्ट है, कर्नल कोर कंपोनेंट है, ठीक है। इस तरीके से चीजों को अभी जरा दिमाग में रखते जाओ, याद रखते जाओ, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद चीजें समझ में आ जाएंगी। टाइप्स ऑफ कर्नल है वो हम लोग बाद में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कर्नल के अंदर आपका मोनोलिथिक एंड माइक्रो कर्नल हम लोग पकड़ने वाले विद द डायग्राम, ठीक है। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं, स्टॉप शेयर, ओके, एंड रिकॉर्ड। शेयर दिस नोट्स टुडे। जी सर आपके प्लीज ये नोट्स आज ही भेज दीजिएगा। ये नोट्स आज भेज दूं? यस सर, वो मतलब लिंक आप जहाँ भेजते हैं वहाँ पे। ओके ओके।